Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our third lecture on algebra. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so right, it's our third lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. So last lecture again was not very technical, it was very basic lecture. First I talked about introduction again, and then I also gave you a definition of mathematical models and a couple of examples. Okay, so what is optimization? Optimization is making the best possible decision which satisfies your objectives, and it also satisfies the conditions that you might have on your problem, right? So optimization is choosing the best possible option under some constraints. Okay, under some constraints. There will be some constraints on you, but maybe you have only finite amount of money, maybe you only have finite amount of time, you only have finite amount of workforce and other restrictions. So you have to satisfy your objective, and also you have to live within your means, and then you have to make the best possible decision. Maybe maximize your profit, maybe minimize your cost, maybe maximize let's say your revenues, whatever is your objective. Okay, so I gave you a few examples of problems from optimization in the last two lectures. Okay, so then in the last lecture I also told you what is a mathematical model. So mathematical model is transforming your real life word problems into the language of mathematics. For example, into equations and let's say inequalities and conditions, restrictions, in a way that every important information in your physical problem or physical system is represented in your mathematical model or in your mathematical equations. So if you miss a certain important parameter from your physical system and you do not transform it into your mathematical model, and then you basically have not represented that physical system into the mathematical model correctly. Okay, so जितने भी important factors हैं आपके original system में, वो सब के सब मैथमेटिकल मॉडल में प्रेजेंट होने चाहिए. अगर उनमें से कोई भी मिस हो जाता है तो ज़ाहिर है आपका मैथमेटिकल मॉडल करेक्टली आपके फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. ओके, सो हमने ये देखा था कि मैथमेटिकल मॉडल थे क्या, मैथमेटिकल मॉडल की डेफिनेशन क्या थी, और मैथमेटिकल मॉडल की एक दो एग्जांपल्स भी देखी थी. उन एग्जांपल्स को मैं ब्रीफली देखता हूँ दोबारा और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मूव हो जाएंगे. ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है लैंड का, उसको आपने फेंस करना है और फेंसिंग की दो साइड्स के ऊपर आपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग फेंस यूज़ करना है. वो $3 पर फीट मिलेगा, और दो साइड्स के ऊपर आप स्टैंडर्ड फेंस यूज़ कर सकते हैं जो $2 पर फीट में मिलेगा, और टोटल आपके पास $6000 हैं. उसी के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है. ओके, तो आप $6000 में ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया आप कवर कर सकते हैं ये आपने बताना है. तो मैंने आपको ये एग्जांपल सॉल्व करके बताई थी कि अगर आपके पास ये रेक्टेंगल हो, इसकी इस साइड को x ले लें, इस साइड को x vx होगी, ज़ाहिर है ये दोनों साइड्स y हैं, तो इसके ऊपर टोटल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस y प्लस 3y, और ये टोटल कॉस्ट है आपकी. ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x प्लस 6y. ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट, जितने आपके पास टोटल पैसे हैं उससे ज़्यादा आप कॉस्ट नहीं कर सकते, और उतनी ही कॉस्ट आपने करनी है. तो 4x प्लस 6y शुड बी इक्वल टू 6000. राइट, अब आपको ये पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है. रेक्टेंगल का एरिया x टाइम्स y होता है. अब ये रेक्टेंगल का एरिया आपने इसको क्या करना है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है, और आपकी कंडीशन ये है कि 4x प्लस 6y शुड बी इक्वल टू 6000. अब ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है. फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस 2 वेरिएबल के फंक्शन को हम चाह रहे हैं इस कंडीशन को यूज़ करते हुए
वन वेरिएबल का फंक्शन बना लें, क्योंकि वन वेरिएबल के फंक्शन को हैंडल करना आसान होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1000 माइनस 2/3x। इसको आप यहाँ वापस पुट करेंगे तो आपके पास एक फंक्शन ऑफ x आ जाएगा जो होगा x इंटू 1000 माइनस 2/3x, और इन द एंड आपके पास आ जाएगा 1000 माइनस 2/3x स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये एरिया फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, और आपकी जो कंडीशन थी, जो कांस्टेंट थी, वो भी आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आपने प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये बन गया कि मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, ओके, या ऑप्टिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, ये आपका यूजुअल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। हमारे पास एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम था, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया मैथमेटिकल इक्वेशंस में। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं था। ओके, अब इसी तरह मैंने आपको एक और मैं प्रॉब्लम बताया था। इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे, इसको मैंने जनरलाइज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्रॉब्लम बनता क्या है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स लेट्स से इज इक्वल टू जो भी आपके पास आएगा, फंक्शन आपके पास बन रहा है 1000 एक्स आएगा। आई थिंक यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 1000 एक्स आएगा। ठीक है, मैक्सिमाइज 1000 एक्स माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर। ओके, इसके ऊपर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, जो कंडीशन थी वो हमने इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया, लेकिन आप अगर कहना चाहें तो मे बी आप कह सकते हैं सब्जेक्ट टू y इज इक्वल टू सॉरी y आपकी कंडीशन ये है 1000 माइनस 2/3x, 1000 माइनस 2/3x। तो आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है, x आपके पास यहाँ से फाइंड कर लें जो इसको मैक्सिमाइज करता है एरिया को, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y दोनों उस रेक्टेंगुलर रीजन की डायमेंशंस आ जाएंगे। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्यूशन आप इंशाल्लाह अभी कुछ देर में, होपफुली आज ही ये हो जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास एक जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इस तरह का होगा कि मैक्सिमाइज करना है किसी फंक्शन को और कोई कंडीशन होगी, मिनिमाइज करना है किसी फंक्शन को, कंडीशन होगी। ठीक है, कोई ना कोई फैक्टर आपने मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपके लिए ये डिफाइन की थी कि आपके पास ये कॉस्ट फंक्शन है, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है या फर्म है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और वो बल्क में सेल करती है, जैसे एक ड्रम में सेल करती है, उसको एक यूनिट कहेंगे, वो $100 का मिलेगा। उससे कम वो सेल नहीं करते, तो यूनिट्स में ही आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी जो डेली प्रोडक्शन कॉस्ट है ना x यूनिट्स बनाने की, वो है 100,000 प्लस 50x, ठीक है, प्लस 0.0025x स्क्वायर। ठीक है, अब वो x यूनिट्स अगर बनाते हैं तो उनको सेल करेंगे तो सेल कितनी होगी, हर एक की $100 है, तो $100 में बिकेगा, तो 100 टाइम्स x, जितने भी बेचेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वो उनका रेवेन्यू है। तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट ज़ाहिर है सेल्स में से आप अपनी कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो 100x माइनस 100,000 माइनस 50x माइनस 0.0025x स्क्वायर। तो ये आपके पास प्रॉफिट है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये अगेन फंक्शन ऑफ x है, एक फंक्शन है, उसको मैक्सिमाइज करना है। और आपके पास कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि ये जो आप यूनिट्स बना रहे हैं ना, ये ज़ाहिर है आप 0 बना लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 7000 बना सकते हैं। 7000 से ज़्यादा एक दिन में यूनिट प्रोडक्शन नहीं हो सकती, उस फैक्ट्री की कैपेसिटी नहीं है इतनी, जब वो 7000 यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। ओके राइट, सो ये आपके पास एक और ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया कि आपने एक फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करना है, एक कॉन्स्टेंट है आपके पास कि जो x है ना वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 7000, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन जनरल
ऑप्टिमाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम होता है वो इसी फॉर्म का होता है। आपके पास कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है या ऑप्टिमाइज करना, इसको इन जनरल कहते हैं, और उसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कोई कंडीशंस होती हैं। तो इन जनरल अगर ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रॉब्लम मैंने लिखना हो तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, इन जनरल हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर हम ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टूल्स लेंगे कैलकुलस से और उनको अप्लाई करेंगे हमारे रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे और देखेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशंस किस तरह के आते हैं, उन सॉल्यूशंस को इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे और हमारे पास वो रियल लाइफ में हमारी कैसे हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इन जनरल कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको 2 ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स करके दिखाए। एक प्रॉब्लम था रियल लाइफ का, उसको मैंने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो कैसा प्रॉब्लम बन गया। वो प्रॉब्लम ये था कि आपने कोई वेरिएबल x फाइंड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे x के मोर देन 1 पैरामीटर्स हैं। अभी मैंने जो 2 एग्जांपल्स देखी उनमें x का एक ही पैरामीटर था, x खुद वेरिएबल था, लेकिन ये यहाँ पे x मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है, ये जस्ट ये इलस्ट्रेट करने के लिए लिया हुआ है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक 1 वेरिएबल की थ्योरी हम अलग से डील करते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की थ्योरी हम अलग से डील करते हैं। तो ये दोनों थ्योरीज हम डेवलप करेंगे, लेकिन जब जनरल ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम कह रहे हैं तो इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ऑफ कोर्स अलाउड हैं। तो जो हमें वेरिएबल फाइंड करना है x या वेक्टर फाइंड करना है, उसके अपने कुछ मज़ीद फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने ये फाइंड करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो टोटल कितने यूनिट्स बनाएं, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। या आपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है तो कितने यूनिट्स बनाएं और उनको कहाँ कहाँ सेल करें, तो ये अलग फैक्टर्स हैं उसके। तो मे बी कहीं पे आप सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। मे बी किसी पर्टिकुलर कंट्री में आपके पास वही यूनिट ज़्यादा प्राइस पे सेल हो जाता है और किसी और कंट्री में वो यूनिट कम प्राइस पे सेल होता है। तो आपको कहाँ कहाँ सेल करना चाहिए, कितने कितने यूनिट्स कहाँ भेजने चाहिए, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक से ज़्यादा फैक्टर्स यूजली हमने फाइंड करने होते हैं जिससे हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव होता है। तो हमारे पास क्या होगा, कोई वेरिएबल x हमने फाइंड करना होगा जो मिनिमाइज करता हो किसी फंक्शन f ऑफ x को। अब ये मिनिमाइज यहाँ पे मैंने लिखा है, इसकी जगह आप मैक्सिमाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इन जनरल आप ये लिख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज करता हो, मिनिमाइज करता हो, मैक्सिमाइज करता हो, ऑप्टिमाइज करता हो, दोनों में से कोई भी एक हो, लेकिन हमने यहाँ मिनिमाइज के लिए लिखा है। तो एक जनरल प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, आपने कोई वेरिएबल्स फाइंड करने होंगे, कोई अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी होगी। वेरिएबल्स अननोन क्वांटिटीज होती हैं, राइट। तो कोई अननोन क्वांटिटीज आपने फाइंड करनी होगी जो आपके फंक्शन को, आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करती हैं, आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं, आपकी सेल्स को मैक्सिमाइज करती हैं, आपके लेट्स से ट्रैवल टाइम को मिनिमाइज करती हैं, आपके कॉस्ट को मिनिमाइज करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें। तो ऐसे आपने ये वेरिएबल्स फाइंड करने हैं जिससे आपका फंक्शन ऑप्टिमाइज हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, और जाहिर है उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगी हमेशा। आपकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 7000 यूनिट्स हो सकती है, अभी हमने देखा। या आपने कम से कम दिन में अगर आप 10 यूनिट्स नहीं बनाएंगे ना तो आपकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। ठीक है, तो आपने कम से कम 10 यूनिट तो बनाए ना रोज़ाना, तो तब आपकी कॉस्ट पूरी होगी। अगर आप 10 यूनिट से कम बनाएंगे, आप पॉकेट से दे रहे होंगे, 10 यूनिट बनाएंगे तो आप इवन हो जाएंगे, मतलब कॉस्ट पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा फिर बनाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इसी तरह कुछ और बातें कि आपके पास हैं ही $6000 तो वो ही स्पेंड करने, इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये सारी कॉन्स्टेंट्स हो सकती हैं, कुछ लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कुछ इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स होती हैं। तो ये सब की सब कॉन्स्टेंट्स जो हैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, तो किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल फाइंड करना है जो आपके फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, और जाहिर है उसके ऊपर कोई कंडीशंस होंगी जिनको हम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपके फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं,
उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं या कंडीशंस कहते हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, जितने पैसे हैं उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसी में प्रोडक्शन करनी है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इससे जो चीज़ें बनेंगी वही बन सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। 50 लोग काम करने वाले हैं, 50 लोग ही काम करेंगे, और एक शिफ्ट में ही काम करते हैं तो एक शिफ्ट में ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये सब के सब फिक्स्ड चीज़ें हैं जो आपके पास उसके ऊपर होती हैं, इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं जो आपके फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दें, मैक्सिमाइज कर दें या मिनिमाइज कर दें, सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। सो इन जनरल कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा वो हमेशा ऐसा ही नजर आएगा। जिस तरह हमने अभी 2 एग्जांपल्स आपको करके दिखाई, जिसमें एक प्रॉब्लम था उसको हमने रियल लाइफ की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, एक फंक्शन बन गया था, उसको या मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, उसमें वेरिएबल्स फाइंड करने थे और फिर उसके ऊपर कुछ कंडीशंस कॉन्स्टेंट्स थी। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, वो भी हम क्विकली देख लेते हैं कि जो वेरिएबल एक्स है ना, उसको हम डिजाइन वेक्टर कहते हैं या डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। यही हमने फाइंड करना होता है ना, इसी के ऊपर सब हमारे डिसीजंस डिपेंड कर रहे होते हैं। फिर तो अगर एक्स फाइंड कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमने यही वेरिएबल एक्स फाइंड करना होता है। इसमें जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जाहिर है वो सब के सब हमने फाइंड करने होते हैं। जो ही हमें उन सब पैरामीटर्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हमने अपना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। हमारा जो सोल्यूशन है ऑप्टिमाइज हो गया है, मैक्सिमाइज हो गया या मिनिमाइज हो गया। अब वो जो पैरामीटर डिजाइन वेक्टर्स हैं उनको यूज करके आप अपना सिस्टम बना लें, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसमें वो वैल्यूज आप इंक्लूड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सिस्टम है वो इन वैल्यूज के लिए ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देगा। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इन वैल्यूज के लिए अचीव भी हो जाएगा, और वो बेस्ट पॉसिबल वे है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का अंडर दोज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स आपके फंक्शन में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। एरिया एक फंक्शन बन जाता है, कॉस्ट एक फंक्शन बन जाता है, प्रॉफिट एक फंक्शन बन जाता है। तो हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका हमेशा एक फंक्शन की फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाता है, और उस फंक्शन को हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये फंक्शन आपके ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और जाहिर एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, और ये जो फंक्शन जी आई हैं अभी मैंने आपको बताया, ये कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं उस प्रॉब्लम की। जो भी आपकी फिक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, अभी मैंने आपको बहुत सारी उसकी एग्जांपल्स दी कि आपकी फिक्स कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकती हैं। ओके, फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और उस कुछ कॉन्स्टेंट्स हो, तो हम कहते हैं ये आपका एक कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर, ऐसा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स लगी हुई हैं, तो इसको हम कह देते हैं ये कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, सो अगर कोई कॉन्स्टेंट ना हो आपके ऊपर, आपके प्रॉब्लम के ऊपर, आपने जस्ट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो हम कहते हैं ये अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इतने कॉमन नहीं है, ज़्यादातर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ हम ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे ज़ाहिर है इस कोर्स में जिनके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं होगी, फिर उनको हमने ऑप्टिमाइज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है उनको हम कहेंगे ये अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है। तो ये आपकी कोई नोटेशन है। ठीक है, ये हम वर्ड्स बार बार यूज करेंगे इस कोर्स में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होती है, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, डिजाइन वेक्टर क्या है, डिसीजन वेरिएबल क्या है, तो ये सब के सब जो वर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशन और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो अब हम दोबारा देखते हैं। अब हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमने देखे अभी तक 2 देखें, जो मैंने मतलब मैथमेटिक्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करके दिखाएं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आप देख चुके हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन जाहिर है, अभी मैंने एक रिमार्क दिया था कि ऑप्टिमाइजेशन 1 वेरिएबल में भी हो सकती है। जाहिर है डिसीजन वेरिएबल में जितने पैरामीटर्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 1 वेरिएबल में है तो ऑप्टिमाइजेशन वो 1 वेरिएबल की है, ज़्यादा की है तो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन होगी। लेकिन
वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन यूजुअली आसान होती है, बहुत इजी होती है। तो ऐसी ऑप्टिमाइजेशन को हम सेपरेटली डील करते हैं, उसके मेथड्स हम एक बार डेवलप करके फिर बता देते हैं कि ये वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले मैं वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन को डील कर रहा हूँ, और वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत पर्टिकुलर फॉर्म की ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं, वही जो हम कैलकुलस में पहले देख चुके हैं। इसके अलावा वाली ऑप्टिमाइजेशन बाद में आएगी, लेकिन ये इनिशियल 1-2 लेक्चर्स हम वही कैलकुलस की चीज़ें कर रहे हैं। और कैलकुलस में जो चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम स्किप कर देते हैं। तो इसमें हमने वही कैलकुलस के टूल्स लेने हैं वन वेरिएबल के ऑप्टिमाइजेशन के, और उनको हमने अप्लाई करना है एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स पे, कुछ सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह इसी एरिया को आगे लेके चलेंगे। तो वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इसकी 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं। एक एग्जांपल ये थी, अभी हमने देखा कि एक फंक्शन आपके पास बन रहा है, वन वेरिएबल का फंक्शन है, उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना। फंक्शन फिर दोबारा लिख देता हूँ, ये एग्जांपल हमें याद हो जानी चाहिए क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारा ये वन वेरिएबल का कैलकुलस की ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम हम बेसिकली रिजॉल्व कर देंगे। तो शायद हमारे पास ये फंक्शन था 1000x माइनस 2/3 x², कुछ इस तरह का हमारा प्रॉब्लम था, और इसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो ये वन वेरिएबल का फंक्शन है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है या ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो वन वेरिएबल के जो फंक्शंस होते हैं उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का हमें पता है कैसे करते हैं, तो ये हमारे लिए इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो सब कैलकुलस की चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं वन वेरिएबल के फंक्शंस को, तो वो सब अभी हम रिविजिट कर लेते हैं, और फिर इवेंचुअली हम उनको इन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे हम कि ये ऑप्टिमाइजेशन और मैक्सिमम और मिनिमम हमें इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या बता रहे हैं। राइट, सो जो कैलकुलस के टूल्स हैं आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के, वो क्या थे, हम उनको देख लेते हैं। कुछ ऑप्टिमाइजेशन टूल्स कैलकुलस से, उसमें आपको पता है मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात करते थे। 2 तरह के मैक्सिमा और मिनिमा की हमने बात की थी कैलकुलस में, रिलेटिव मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा इसको रिवाइज कर दूं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पहले पता हैं, कैलकुलस आपने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा है, बहुत सारे लेवल्स पे पढ़ा होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। अब ये रिलेटिव मैक्सिमा क्या है, आपके किसी भी पॉइंट के लेट्स से नेबरहुड में उसके अराउंड कोई इंटरवल है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसका रिलेटिव मैक्सिमा। तो अब ये देखें, ये सबसे बड़ी वैल्यू ना, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ लेट्स से फंक्शन को और यहाँ तक फंक्शन कंसिडर करूँ, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल में, और ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये रिलेटिव मैक्सिमा है, ये रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है ना, तो जो इस इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो इस इंटरवल में रिलेटिव मैक्सिमा है, और इस इंटरवल में ये सबसे जो छोटी वैल्यू है ये रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ इस इंटरवल यहाँ ही से स्टार्ट करूं और यहाँ तक इंटरवल को कंसिडर करूं, ठीक है, यहाँ तक, तो इसमें अब आप देखें कि ये वाला सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ कोर्स रिलेटिव मैक्सिमा है, तो इस इंटरवल में ये सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ही है, ये फाइनाइट वैल्यू। लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू अगर कंसिडर करूँ तो ये यहाँ तक अगर मैंने फंक्शन लेट से लिया हुआ, तो ये इसकी बाउंड्री पॉइंट है। तो इस बाउंड्री से अंदर यहाँ पे इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, मिनिमम कोई फाइनाइट वैल्यू इसमें आकर नहीं कर रही, बाउंड्री पॉइंट्स पे है, लेकिन वो हम रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम में कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल से इस इंटरवल के दरमियान, और हम ये कहेंगे कि इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू अकर नहीं कर रही, इस इंटरवल के अंदर कोई मिनिमम वैल्यू अकर नहीं कर रही। बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर जो
हमारे पास वैल्यू है वो अगर हम कंसिडर ना करें, अगर हम बाउंड्री पॉइंट भी कंसिडर करें तो ये इस इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमा है, और मैं लेट्स से इंटरवल ले लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला इंटरवल मैं कंसिडर करता हूँ। तो इस इंटरवल में ये वाला पॉइंट रिलेटिव लेट्स से मिनिमा है, ये यहाँ से अगर आप कंसिडर कर लें, ठीक, इससे बड़ी वैल्यूज हैं ये सारी, ये रिलेटिव मिनिमा है और ये वाला पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा है। तो ये डिपेंड करता है किस इंटरवल के अंदर आप बात कर रहे हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं और उस पॉइंट के अंदर अराउंड कौन सा इंटरवल ले रहे हैं। तो रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को हम ये भी कहते हैं ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। इसको अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखना चाहें, लेट्स से इसी तरह पीक्स में हम कंसिडर करें तो माउंटेन्स हैं, सारी दुनिया की माउंटेन्स में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि सारी दुनिया की माउंटेन्स जो है ना वो नहीं हम कंसिडर कर रहे, हम जो पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन्स है ना उनमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है, आप में भी ये कहेंगे कि K2 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो अब आपने लोकल हो गया ना, अब आपने पूरी दुनिया की बजाय सिर्फ पाकिस्तान कंसिडर कर लिया, तो अब आपने पाकिस्तान में जो रिलेटिव मैक्सिमा है ना माउंटेन्स का वो है K2, लेकिन ये पूरी दुनिया की माउंटेन्स का मैक्सिमा नहीं है, लेकिन ये रिलेटिव मैक्सिमा किसी सर्टेन रीजन में मैक्सिमा है तो भी वो रिलेटिव मैक्सिमा है। इसी तरह आप इसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर दें, आप कहेंगे K2 के बाद K2 कंसिडर नहीं करनी, उसके बाद पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, तो फिर आप इसी तरह देखेंगे कौन सी माउंटेन आपकी हाईएस्ट है। मे भी आप नांगा पर्वत में कोई माउंटेन आप देखेंगे, तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इससे आप होपफुली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जो लोकल मैक्सिमा होता है या जो रिलेटिव मैक्सिमा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल मैक्सिमा भी हो। पूरी दुनिया की माउंटेन्स में सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान का वो मैक्सिमा लोकल नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान का मैक्सिमा क्या है, K2 है, K2 पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में भी उसका पार्ट है, राइट। तो इसी तरह किसी और वैल्यू में अगर आप कंसिडर करें, इसी तरह किसी और एग्जांपल में कंसिडर करें, तो डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो कोई सर्टन पर्सन होगा, लेकिन वो टॉलेस्ट पर्सन जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में हो, आप फिर कहेंगे पाकिस्तान का टॉलेस्ट पर्सन, फिर आप इसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर दें, फिर आप कहेंगे कि इस्लामाबाद का टॉलेस्ट पर्सन, तो ये इस्लामाबाद का टॉलेस्ट पर्सन इस्लामाबाद का लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, और जो पाकिस्तान का टॉलेस्ट पर्सन है वो पाकिस्तान का लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, वो इस्लामाबाद का लोकल मैक्सिमा होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आप कहेंगे कि इस्लामाबाद भी रहने दें, जो कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स हैं ना वर्चुअल कैंपस के, उन सब का टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है, तो फिर आप ये लोकल मैक्सिमा हो गया। इसी तरह आप ये कहेंगे CGPA कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स का, कॉमसेट्स के स्टूडेंट का CGPA एक लोकल मैक्सिमा होगा, जो पूरी पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके CGPA का लोकल मैक्सिमा होना ज़रूरी नहीं है या मैक्सिमा होना ज़रूरी नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा कॉमसेट्स के लेट्स से वर्चुअल कैंपस के स्टूडेंट्स का हाईएस्ट CGPA। फिर आप इसको भी क्लासिफाई कर दें, आप कहेंगे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनमें से सबसे ज़्यादा CGPA, तो आप कहेंगे ये अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का रिलेटिव मैक्सिमा है। और इवन मैथमेटिक्स में भी MSc की क्लास के स्टूडेंट्स का जो हाईएस्ट CGPA है वो उनका रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। तो जो रिलेटिव मैक्सिमा है वो ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा हो, तो रिलेटिव मैक्सिमा किसी सर्टन रीजन के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और इसी तरह किसी सर्टन रीजन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा की डेफिनेशंस हैं जो आपने पहले भी देखी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन मैं आपके लिए कर देता हूँ कि फंक्शन f is said to have a relative maxima at x naught if there is an open interval containing x naught on which f of x naught is the largest value, that is f of x naught is greater than equal to f of x for all x in the interval, ठीक है। कोई पॉइंट है, कोई सा आपके पास फंक्शन है, लेट्स से f of x, ठीक है, ये f of x है, इसके अंदर
कोई ऐसा पॉइंट उसको हम रिलेटिव मैक्सिमा कहेंगे। फंक्शन हम कहते हैं कि फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा है किसी पॉइंट के ऊपर, लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर। अगर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी सब पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उनसे ज्यादा हो, एफ ऑफ एक्स नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये पूरे फंक्शन की बात नहीं हो रही, किसी सर्टेन रीजन के अंदर बात हो रही है। तो लेट्स से एक्स नॉट के अराउंड आपको इंटरवल फाइंड करते हैं, ठीक है, इंटरवल आई है, मे बी वो ए से बी तक है। तो इस ए से बी के अंदर जो एक्स नॉट है उसके ऊपर हम कहेंगे फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा है। अगर इस इंटरवल के अंदर एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी सब वैल्यू से ज्यादा हो, ठीक है, बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा। इसी तरह रिलेटिव मिनिमा होगा अगर इस इंटरवल के अंदर एफ एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू से कम हो। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है फंक्शन की उस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो एक्स नॉट को हम कहेंगे ये रिलेटिव मैक्सिमा है अगर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो उस इंटरवल में। और हम रिलेटिव मिनिमा कहेंगे अगर किसी इंटरवल के अंदर जिसमें एक्स नॉट ऑफ कोर्स कंटेन्ड है, उस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट के ऊपर सबसे कम हो और बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर उससे वैल्यू ग्रेटर हो या ऑफ कोर्स उसके इक्वल हो, ठीक है। अब एक नोट है कि अगर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड कर सकते हैं या रिलेटिव मिनिमा कर सकें, एक या दोनों, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इसका रिलेटिव एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है एक्स नॉट के ऊपर, ठीक है। तो अगर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करता हो या रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करता हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो हम कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमा, मिनिमा या मैक्सिमा दोनों, एक्सट्रीमा दोनों तरफ से कोई एक हो जाए, मिनिमम वैल्यू हो जाए, मिनिमम एक्सट्रीम हो जाए या मैक्सिमम एक्सट्रीम हो जाए, दोनों में से एक भी एक्सट्रीम एग्जिस्ट करती हो, तो हम कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, ओके राइट। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी हैं। अगर आपके पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देख लें, यहाँ पे ये फंक्शन का ग्राफ है, ये मैंने प्लॉट किया हुआ है। इस फंक्शन के ग्राफ को अगर आप देखेंगे ना, तो ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव मिनिमा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, ये इन्फिनिटी की तरफ दोनों तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रिलेटिव मिनिमा है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन इसका कोई रिलेटिव मैक्सिमा नहीं है, ठीक है। तो अनलेस कि आप इसकी डोमेन को डिवाइड करें, आप इसको पूरे फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा और एग्जिस्ट नहीं करता और रिलेटिव मिनिमा कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, ठीक है। अब अगर एक और मैं एग्जांपल आपके लिए कर दूं, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। इसका ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हुआ है। ग्राफ देख के आपको फौरन पता चल जाता है, आसानी से पता चल जाता है कि फंक्शन जो है उसका रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ पे है, मिनिमा कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्राफ से इजीली पता चल जाती हैं। अब अगर आप इसको देखें, इस फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू -1 है, इसके ऊपर इसका रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इसका है रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। ये ऑब्वियस है, क्लियर है इस ग्राफ से। और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसका रिलेटिव मिनिमा है और x इज इक्वल टू -1 के ऊपर इसका रिलेटिव मैक्सिमा है। इसके अलावा इसका और कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये फंक्शन यहाँ से भी फाइनाइट इनफाइनाइट है और यहाँ पे भी इनफाइनाइट ही की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलें, एक और इसमें फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं।
ये आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसका ग्राफ भी थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेरे पास फंक्शन है जिसको मैंने प्लॉट किया। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी खुद ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसको प्लॉट करना तो बहुत आसान था, इसको प्लॉट करना थोड़ी सी एफर्ट करके आप कर लेंगे। अब ये जो फंक्शन है इसको प्लॉट करना पता नहीं इतना आसान नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर से किया हमने, लेकिन अगर आप खुद से प्लॉट करना चाहेंगे तो कर लेंगे आप, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और बहुत सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप फंक्शन का कोई ना कोई चीज़ स्किप कर देंगे। तो अब ये फंक्शन आपने यहाँ प्लॉट किया। अब इस फंक्शन को देखें, ये वाला ही पॉइंट जो है ये मैक्सिमम लग रही है, ये वाला पॉइंट जो है ये मिनिमम है, ये भी एक और मिनिमम है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये रिलेटिव मैक्सिमम है डेफिनेटली, ठीक है, कि इस पॉइंट के अराउंड आप इंटरवल बना सकते हैं यहाँ तक जिसके अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मैक्सिमम वैल्यू और कहीं नहीं है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अराउंड भी एक इंटरवल बना सकते हैं आप जिसमें ये मिनिमम वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू और किसी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये वाला पॉइंट जो है ये रिलेटिव मिनिमम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा एक एग्जिस्ट करता है, एक रिलेटिव मिनिमा x इज इक्वल टू 2 पे है, लेकिन इसके अलावा एक और रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव इसका मिनिमम भी है। वो रिलेटिव मिनिमम क्या है? वो रिलेटिव मिनिमम इस पॉइंट के ऊपर है। अब इस पॉइंट के अराउंड भी आप एक इंटरवल बना सकते हैं जिसके अंदर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, इससे कम वैल्यू किसी और पॉइंट के ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट रिलेटिव मिनिमा, ये यहाँ पे ये मिनिमम होना चाहिए, तो सॉरी ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो रिलेटिव मिनिमम x इज इक्वल टू -1 पे और रिलेटिव मिनिमम x इज इक्वल टू 2 पे, और रिलेटिव मैक्सिमम जो है वो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर अकर कर रहा है। तो रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम होगा अगर उस पॉइंट के अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करता हो, ज़ाहिर इंटरवल जो है वो उसकी लेंथ जो है नॉन जीरो होनी चाहिए। तो एक इंटरवल इसके अराउंड एग्जिस्ट करता हो जिसमें ये वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा हो तो मैक्सिमम है, और इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू उस इंटरवल में अगर फंक्शन की सबसे कम हो तो ये रिलेटिव मिनिमम है। तो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम की ये चीजें आपने पहले भी देखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा चलें इसको ये इंट्यूशन है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी पॉइंट आउट कर दिया कि ग्राफ बना के मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो यूजुअली फंक्शंस का ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होता। तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हम फंक्शंस को लेके, उनकी इक्वेशंस को लेके हम ये बता सकते हो कि फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम किन पॉइंट्स के ऊपर होगा। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने अगेन देखी हुई है कैलकुलस में, कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। A critical point of a function f is a point in the domain of f at which either the graph of f has a horizontal tangent line or f is not differentiable. हमने ये चीज़ें डिफाइन तो कर दी डेफिनेटली, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको याद हो कैलकुलस से तो हम किस लिए करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट ही बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होता है, ठीक है। तो अगर आप बाउंड्री पॉइंट्स कंसिडर ना करें तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स ही वो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट हैं, मैं यहाँ पे डेफिनेशन में ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे फंक्शन के ऊपर, अब टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो फंक्शन के ग्राफ को किसी एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रही हो, ठीक है। तो अब ये वाला इस पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट लाइन बनाई तो वो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन इसके इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो आप कहेंगे कि ये वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है अगर इस पॉइंट के ऊपर आप जो टेंजेंट लाइन बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल हो, मतलब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब आपको ये पता है कि टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन उसका स्लोप जो होता है टेंजेंट लाइन का वो बेसिकली होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर आपके पास फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव लें और वो डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप फाइंड करें एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, तो ये आपको बताएगा
कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन जो अब बनेगी उसका स्लोप क्या होगा। तो अगर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन का स्लोप तो 0 होता है। तो बेसिकली ये स्लोप अगर 0 आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमने बेसिकली वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एक तो ये हो गया कि वो पॉइंट्स जिनके ऊपर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अलावा वो भी पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे पॉइंट्स को भी हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है उनको भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स ही कहते हैं। लेकिन वो पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो 0 हो जाता है, मतलब टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट थोड़े ज़्यादा स्पेशल हैं, उनको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। ये अगेन कैलकुलस की चीज़ें हैं जो आपके लिए वेल नोन है, आपने बहुत दफ़ा देखी हुई हैं। तो आप इसमें देख लें थोड़ा सा, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट भी है। ये यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है और आपको ये पता होगा कैलकुलस से, जहाँ पे कॉर्नर बन रहा होता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अब इस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है। और फिर यहाँ पे फिर एक कॉर्नर आ रहा है, तो इसके ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है जिन पॉइंट्स के ऊपर, उनको हम कहते हैं ये स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होते हैं, ये सारी कंडीशंस हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करने की, उनको भी हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होते। अब क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत क्या है? कैलकुलस से आपको पता है, कोई नई चीज अभी तक मैं आपको नहीं बता रहा। तो क्रिटिकल पॉइंट हम डिफाइन क्यों करते हैं? उसकी ये रीजन है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो f जो कि किसी ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो, जाहिर है डिफाइन होगा मतलब उसकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो पूरे ओपन इंटरवल के ऊपर, तो अगर उसका कोई रिलेटिव एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट x0 पे, तो x0 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा f का, ठीक है, या उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव 0 होगा या वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब ये कि अगर फंक्शन का एक्सट्रीमा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर होगा, ठीक है। अगर फंक्शन का एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, तो वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर होगा। अब ये डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करे हमेशा, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो जरूरी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट्स भी हों। लेकिन अगर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा या एक या दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर होंगे। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमने क्यों डिफाइन किए हैं? अब आपने फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। तो उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो फंक्शन है वो या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। क्रिटिकल पॉइंट्स जो है, इसका वर्ड मैथमेटिक्स में हर चीज़ की एक रीज़न होती है, इसको वर्ड क्रिटिकल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स बेसिकली होते हैं जहाँ पे यूजुअली फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। मतलब ये कि फंक्शन जो है वो लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। यूजुअली क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, ठीक। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन के बिहेवियर में शिफ्ट आ रही है, ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो आपको ये पता है कि नॉर्मल अगर चीज़ें फ्लो कर रही हों तो हम उनके फ्लोज में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, वो रूटीन है। जो चेंज आती है ना, फिर हम वहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, ये चेंज क्यों आई है, चेंज आने का हम ज़ाहिर रीज़न जानना चाह रहे होते हैं, और इस चेंज की वजह से हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स आए हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। तो जो ये चेंज होता है, जो उसकी यूजुअल मूवमेंट होती है उससे फंक्शन
चेंज होता है, अगर फंक्शन पहले लेट्स से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा था या इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, या पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये वाला जो मिडल वाला पॉइंट है जिसके ऊपर इसने अपना बिहेवियर चेंज किया, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हमने स्टडी करना है। और हमने अभी देखा कि वही पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स ही वो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। तो अब इस पहले एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही है, ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है और रिलेटिव मैक्सिमम भी है। ठीक है, तीनों हैं। अब यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट है, ऑफ कोर्स है, ये क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ऐसे ही है ना, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही होती है, लेकिन इसके ऊपर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जीरो तो जाहिर है फिर नहीं हो सकता ना। तो ये वाला लेकिन रिलेटिव मैक्सिमा है, क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टिल ये रिलेटिव मैक्सिमा है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है क्योंकि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही है, और ये रिलेटिव मिनिमम भी है। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। तो इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, उनको भी हम देख लेते हैं। अब ये पॉइंट देखें, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही है, देख लें इसको अगर आप कन्विंस हैं तो। ये क्रिटिकल पॉइंट है, डेरिवेटिव इसके ऊपर जीरो होगा, आप चेक कीजिएगा प्लीज। अभी हम इसको देख लेते हैं। स्टेशनरी पॉइंट है और लेकिन इसके ऊपर ना रिलेटिव मैक्सिमा है ना रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, दोनों नहीं है। तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन इसके ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा भी नहीं है और रिलेटिव मिनिमा भी नहीं है। ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है कि सब क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर या तो रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है, लेकिन अगर रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा आएगा तो वो डेफिनेटली क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर या रिलेटिव मैक्सिमा मिले या रिलेटिव मिनिमा मिले, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये कहा था कि यूजुअली ऐसा होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन इसके ऊपर अपना फंक्शन बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा। यूजुअली का वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि, और वही क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा यूजुअली आता है जिन पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर ले। अब इसमें देखें ये फंक्शन पहले भी इंक्रीज कर रहा था, बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन पहले भी इंक्रीज कर रहा है, बाद में भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाले यहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टिल क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही है। इसको भी देख लें, सेम है, क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट तो हो लेकिन फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, अच्छा अब इसको देख लें। फाइनली क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन तो नहीं बन रही ना, यहाँ पे ये इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन नहीं बन रही, और इन्फ्लेक्शन इसके ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैक्सिमा की, सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स की, स्टेशनरी पॉइंट्स की, और ऐसे क्रिटिकल पॉइंट जो स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं हैं, और ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स इनके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आई एम श्योर ये आपने पहले भी देखी होंगी, कैलकुलस 1 में यूजुअली हम ये सब एग्जांपल्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अब ये तो फिर ग्राफ की बात है ना, ग्राफ से क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, ग्राफ से हमने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड देखे कौन से हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स देख लिए, रिलेटिव मैक्सिमा है या नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ग्राफ फाइंड करना हमेशा आसान नहीं होता। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना
आप सॉफ्टवेयर वगैरह अगर यूज़ करें तो सॉफ्टवेयर अक्सर कर्व्स के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन हम इतनी वैल्यूज़ लेके उन ग्राफ्स को यूजली एक्यूरेटली प्लॉट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने फिर इसको अलजेब्राइकली सॉल्व करना है। इन वैल्यूज़ को, इन फंक्शंस के हमने लेट्स से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने, एक्सट्रीमा फाइंड करना है, मैक्सिमा फाइंड करना है, मिनिमा फाइंड करना है, तो ये सब हमने अलजेब्राइकली करना है। तो अलजेब्राइकली करने के लिए ज़ाहिर है अभी हमने ये कहा कि मैक्सिमा एक्सट्रीमा उन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, अगर एक्सट्रीमा होगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर होगा। और क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो जाता है या एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या जीरो हो सकता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसके सब पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नॉन नेगेटिव यहाँ जीरो है। तो अब ये वाला जो फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जाहिर है इसके जो है सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हम निकालेंगे वो तभी आ सकते हैं जब डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट हमेशा करेगा, ठीक है। तो इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जाहिर है स्टेशनरी पॉइंट्स भी होंगे, ये हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आप अगर इसका फाइंड करें तो ये आ जाएगा 3x² - 3, ठीक है। तो अब आपने वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। वो क्या कब होगा? जब 3x² - 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 3x² - 3 जीरो कब होगा? जब 3x² = 3 हो जाएगा, या x² = 1 हो जाएगा, या x = ±1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है, या ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इस फंक्शन में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बनेगा। ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है जिसके लिए फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो x = ±1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, दोनों ऑफ कोर्स स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने थे, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको भी हमने जल्दी से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने, थोड़ा सा उससे टफ है लेकिन आसान है डेरिवेटिव लेने हमने। तो 3 × 5/3, ठीक है, 5/3 × x⁵ 5/3 - 1 आपको पता है, -15 × 2/3 x⁵ 2/3 - 1, ओके। तो ये हो जाएगा 5 × x⁵ 2/3, ठीक है, माइनस अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये आप याद रखिएगा, माइनस ये हो जाएगा 10 और x⁵ -1/3, ठीक है, -1/3 हो जाएगा, सही है। अब ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब इसको जाहिर है आप थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं इसको। आप अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो उसको नीचे ले जाएं, तो एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 5x⁵ 2/3 + 1/3 - 10 ओवर x⁵ 1/3, ठीक है। और इसको आप ऐड करेंगे तो ये बेसिकली बच जाएगा 5x - 10 ओवर x⁵ 1/3 एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें आपने स्टेशनरी पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? जब एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, 5x - 10 जीरो हो जाएगा, या x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास वो पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया जो खुद स्टेशनरी पॉइंट भी है, ठीक है। तो अब इसके अलावा और क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? इसके अलावा फंक्शन आप मैं दोबारा लिख देता हूँ, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है 5x - 10 ओवर x⁵ 1/3। अब ये फंक्शन जीरो कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा। और ये फंक्शन अनडिफाइंड कब हो जाएगा? जब इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब?
जब x टू द पावर 1/3 0 हो जाएगा या x 0 हो जाएगा। ओके, सो इसके आपने क्रिटिकल पॉइंट सारे फाइंड कर लिए। वो क्या थे? एक तो x = 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है और एक x = 0 है। ये वाला क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट भी है, ठीक है, और ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने थे, सारे आपने फाइंड कर लिए। तो ये आसान होता है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। या तो आपने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, या आपने देखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब हो रहा है या वो इन्फिनिटी कब हो जाएगा। तो इस केस में न्यूमरेटर 0 था तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ज़ाहिर है, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स इसका केस में फाइंड हो गए। ओके, अब आपने रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्रिटिकल पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए ना, अब इसके ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा बन रहा है या रिलेटिव मिनिमा बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये फंक्शन लिया है, सिंपल फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपके पास आ रहा है f(x) = x³ - 6x² + 1। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड कर लें। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? इसका डेरिवेटिव लें, सिंपल डेरिवेटिव है इसका, इसको इक्वल टू 0 पुट करें ज़ाहिर है, और फिर वो पॉइंट्स फाइंड कर लें जिसके ऊपर ये डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है। वो डेरिवेटिव वैनिश होगा x = 0 और x = 4 के ऊपर, और ज़ाहिर है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट हमेशा करेगा। इसका डेरिवेटिव ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जिसके ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो x = 0 और x = 4 इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आ रही है और मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर आ रही है। तो आप अगर 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे वो 1 आ रही है, और अगर 4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे वो आ रही है -31। तो अब आपने ज़ाहिर है 1 इज़ बिगर देन -31, तो f(0) = 1 इसका रिलेटिव मैक्सिमा है और -31 इसका रिलेटिव मिनिमा। तो अगर आपने फंक्शन की रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है, मतलब उसका रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करना है, तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। उसमें से जो बिगर वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जो उसकी स्मॉलर वैल्यू है वो आपकी रिलेटिव मिनिमा होगा। और ये आप याद रखिएगा कि अगर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब हम आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ आज के लेक्चर को, फिर हम इंशाल्लाह इसी को नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये कैलकुलस के कुछ मेथड्स हैं जो आपने पहले से देखे हुए, इनको रिवाइज करना चाह रहे हैं, और फिर हम अपने अप्लाइड प्रॉब्लम्स जो हम इस कोर्स में स्टडी कर रहे हैं उनके ऊपर इनको अप्लाई करना है। तो थोड़ी सी रिवीजन है जो नेक्स्ट लेक्चर में मे बी 15-20 मिनट्स तक कंटिन्यू होगी, और फिर उसके बाद हम इनको इंशाल्लाह अपने जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, सो अब ये इसको मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए, और फिर मैं आज के लेक्चर को क्लोज करता हूँ। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट में फिर लास्ट लेक्चर को हमने देखा था कि मैथमेटिकल मॉडल क्या था। मैथमेटिकल मॉडल ये है कि जो आपकी रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हमने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, मतलब वो प्रॉब्लम उसको इक्वेशंस की फॉर्म में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ओके, सो इक्वेशन ज़ाहिर है मैथमेटिक्स की चीज़ है। जब हम हमारा कोई मॉडल कोई भी फिजिकल फिनोमेना या फिजिकल सिस्टम मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें जो भी अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने ये बात की कि एक जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसा होता है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, मतलब आप ना लेट्स से वो आपका प्रॉफिट फंक्शन हो सकता है, वो आपका कॉस्ट फंक्शन हो सकता है, वो आपका लेट्स से मे बी आपका रेवेन्यू फंक्शन हो सकता है,
कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। उसको आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस होंगी, ऑलरेडी आपके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें आपने एक वेरिएबल फाइंड करना है जिसको आप डिज़ाइन वेक्टर कहेंगे, उसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं, या डिसीजन वेरिएबल कहेंगे। वो डिसीजन वेरिएबल आपने फाइंड करना है, उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, और उसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर रह के आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो वो आपका एक जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा। फिर हमने कहा कि कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई फिक्स कंडीशंस होती हैं, और अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ये होती है जिसके ऊपर कोई फिक्स कंडीशंस पहले से नहीं होती हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं चूज करने में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये बात की कि अब ये तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर लिया, किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट भी कर लिया, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको एक्चुअली ऑप्टिमाइज करना कैसे है। तो हमने बहुत सिंपल ऑप्टिमाइजेशन टूल से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने कैलकुलस में जो फंक्शंस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के जो टूल देखे थे, उनको हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, और फिर उन्हीं टूल्स को हम यूज़ करेंगे और उनको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कहाँ तक वो हमें हेल्प कर रहे हैं इनको ऑप्टिमाइज करने में। जाहिर है एक सर्टेन स्टेज के बाद उन प्रॉब्लम्स की, उन टूल्स की जो कैलकुलस में हमने डेवलप किए हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं जिनके अंडर वो वर्क करते हैं। जो ही वो कंडीशन फेल हो जाएंगी तो हमारे पास वो टूल्स वैलिड नहीं रहेंगे। तो ज़ाहिर है जो ही वो कंडीशंस जिन प्रॉब्लम्स के ऊपर होल्ड करती हैं, उनको तो हम चलें कैलकुलस को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे वो कैसे हेल्प करता है कैलकुलस। लेकिन फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कैलकुलस हमें हेल्प नहीं करता सॉल्व करने में। फिर उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए हम कुछ नए मेथड्स डेवलप करेंगे, कुछ नए टूल्स बनाएंगे जिनके थ्रू हम उन ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने रिवीजन स्टार्ट की थी, आपको ये बताया था कि मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कैसे करते हैं, अगर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाएं तो फिर रिलेटिव मैक्सिमा कौन सा होगा, मिनिमा कौन सा होगा, तो उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लें। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, हमेशा ये वैलिड रहता भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा हो। तो जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही है वो लेट्स से मैक्सिमा है, और जिसके ऊपर मिनिमा है वो, और जिसके ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमा है। तो नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा टेस्ट कैसे करते हैं, इनको फाइंड कैसे करते हैं, और फिर फाइनली हम पहला अपना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, कोई रियल लाइफ का फिनोमेना दिया हो तो उसमें जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करते हैं। ओके, होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो इसी लेक्चर को हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह के टॉपिक्स को हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन टुडे, एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।